See, till now what we have done all the pre-reproductive events, right? Pre-fertilization events. What we have seen कि how is male reproductive system, what is the anatomy of female reproductive system, how they form the gametes, everything we have seen before the fertilization. So we have seen all the pre-fertilization events. Today we'll start the fertilization events. Now what we have seen is in case of females they release ova or ovum, right? Now if sperm comes, then what happens? If sperm comes, then what happens? And if sperm do not reach, then what happens? Okay, now if sperm do not reach, then we have in detail studied menstrual cycle. हमने बहुत डिटेल में menstrual cycle पढ़ी है कि अगर sperm वहां पे नहीं पहुंचता है, fertilization नहीं होती है, तो उस केस में menstrual cycle proceed करती है, menstruation हो जाती है. Now comes the thing when sperm reaches, sperm पहुंच गया वहां पे, तो अब क्या events होंगे जो fertilization के responsible होंगे? Okay, so we'll study today fertilization in case the sperm reaches to the egg. Now, before going into detail of fertilization, we'll see that when secondary oocyte or ovum is released by the ovary in the fallopian tube, what is the composition? क्या क्या वहां पे होता है present? Okay, so we'll see in detail कि वहां पे क्या क्या present है. Okay, if you can see this diagram कि जब secondary oocyte release करते हैं ovary से fallopian tube में, तो उसके साथ क्या क्या आता है. Now in the center you can see this ovum present है center में. Okay, ovum के साथ में क्या present है? ovum के साथ में present होगा, हमने क्या किया था कि secondary oocyte है, secondary oocyte के चारों तरफ क्या होगी? Zona pellucida की layer होगी. So here we can see this zona pellucida layer, right? So this complete green one is zona pellucida layer. Now if you see what happens, अगर ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte और जोना पेल्यूसिडा की लेयर, अगर ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप होगा. There would be some gap in the middle, this gap. Okay, now this space between the zona pellucida and the secondary oocyte is called as perivitelline space. This space is called as perivitelline space. इस space को क्या बोलते हैं? Perivitelline space बोलते हैं. और जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या होंगे? जोना पेल्यूसिडा के बाहर बहुत सारे सेल्स, जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स साथ में आए थे वो होंगे, और जो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे? कोरोना रेडिएटा. तो these cells are कोरोना रेडिएटा. इसके चारों तरफ क्या होगा? कोरोना रेडिएटा के सेल्स होंगे. सो व्हाट वी हैव सीन कि सेंटर में एक सेकेंडरी oocyte है, उसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा है, oocyte और जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक स्पेस है, दैट इज पेरीवाइटलिन स्पेस. और फिर आगे जोना पेल्यूसिडा के आगे और सेल्स की लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. राइट, नाउ विल सी कि हाउ exactly the fertilization is happening. Okay, now what is fertilization? Fertilization क्या है कि हमारा जो gamete है, female gamete है, female gamete is ova, और male gamete that is sperm. इनका fusion होना है और क्या बनना है? zygote बनना है, right? So this is fertilization. Now how does it occurs? First thing is, what is the site of fertilization? Where does it occur? The site of fertilization is within the fallopian tube. fallopian tube के अंदर होती है. और कहाँ पे fallopian tube में? ampulla. ampulla junction पे होती है, ampulla में होती है. Okay, ampullary region में क्या होता है? पूरा fertilization होता है. तो एक बार अगर sperms they are delivered into the female reproductive tract, एक बार sperms को female reproductive tract में अगर inseminate कर दिया जाए, so how many sperms are required in one ejaculation? There are about 300 million sperms. हम already कर चुके हैं कि 300 million sperms होते हैं एक ejaculation में, normal count we are talking about. तो इसमें क्या होगा कि sperms क्या होंगे? Once they are released into female reproductive tract, they will start moving towards the uterus. Okay, they will start moving towards the uterus, and from the vagina they will first cross the cervix को क्रॉस करेंगे, फिर यूट्रस के पास जाएंगे. Now what happens? यूट्रस के अंदर during sexual act what happens? बहुत सारा contraction होता है, muscular contractions होते हैं. So they are rapid muscular contraction.
और यही रैपिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, एड करते हैं स्पर्म्स को टू रीच टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब. They aid the sperms to reach towards the fallopian tube. Now what happens at this stage is, first thing is कि fallopian tube में cervix, fallopian tube के पास जाने से पहले sperms जब डिलीवर किए जाते हैं तो cervix में ही बहुत मर जाते हैं. So cervix के अंदर बहुत सारे sperms वहीं फंस जाते हैं. Next thing is what happens is acidic environment of female reproductive tract, उसकी वजह से बहुत सारे sperms वहीं पे मर जाते हैं. Next thing is what happens is यहाँ पे बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स होंगे. स्पर्म्स या फॉरेन सेल्स हमारी बॉडी के नहीं है, फॉरेन सेल्स है, तो ल्यूकोसाइट्स उनको एनगल्फ कर जाएंगे. स्कैवेंजर्स बोलते हैं इनको. सो दे विल स्कैवेंज ऑल दी सेल्स, जितने पॉसिबल होंगे उतने स्कैवेंज कर लेंगे. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, जैसे जैसे धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंचने लगते हैं तो फेलोपियन ट्यूब की जो लेयर है, फेलोपियन ट्यूब की जो लेयर है, एपिथेलियम है, इट इज सिलिएटेड. कैसी है, सिलिएटेड है, इसके वो बहुत सारा सीलिया है. सो सिलिएटेड एपिथेलियम होने की वजह से यहाँ पे भी बहुत सारे स्पर्म्स ट्रैप हो जाते हैं. ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स ट्रैप हो जाते हैं. नाउ वंस द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड हियर, व्हाट विल हैपन, एक बार अगर रिलीज हो गए यहाँ पे एंड द स्पर्म आल्सो रीचेस देयर, तो यहाँ पे स्पर्म इट विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द सेकेंडरी oocyte. तो 300 मिलियन स्पर्म्स में से द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि कोई स्पर्म वहां तक पहुंचता है. नाउ इन केस इफ द स्पर्म रीचेस देयर, व्हाट हैपेंस, ओके, कंडीशन इज ओव्यूलेशन हो गई. ओव्यूलेशन के 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर अगर स्पर्म वहां पहुंच गया तब तो फर्टिलाइजेशन होगी, तब तो फर्टिलाइजेशन होगी. अगर वो 24 आवर्स के अंदर वहां नहीं पहुंचा, ओके, तो क्या होता है, 24 आवर्स इज द लाइफ स्पैन ऑफ सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte का लाइफ स्पैन ही कितना है, 24 घंटे का ही है. तो अगर 24 घंटे के बाद में स्पर्म वहां पहुंचता है तो सेकेंडरी oocyte ही नहीं बचता तब तक. ओके, तो अगर सेकेंडरी oocyte नहीं बचता है तब तक क्या होगा, स्पर्म दे आर ऑफ नो यूज, कोई भी यूज के लिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन. अगर स्पर्म वहां तक पहुंच भी जाए तो कब पहुंचना है, एग्जैक्टली आफ्टर द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के 24 घंटे के अंदर पहुंचना है उसको वहां, बिकॉज सेकेंडरी oocyte इज वायबल ओनली फॉर 24 आवर्स. सेकेंड थिंग इज, जो स्पीड होती है स्पर्म की मूवमेंट की, दैट इज अबाउट 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट. राइट, हमने बोला था कि 60% ऑफ द स्पर्म शुड बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी. तो मोटिलिटी कितनी है, वो स्पीड कितनी है, द स्पीड इज अबाउट 1.5 to 3 मिलीमीटर्स पर मिनट. तो इतनी स्पीड के साथ उसे मूव करना पड़ेगा सो दैट इट रीचेस देयर. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में the sperm reaches. Next thing is first event. If we are talking about events, first event is arrival of sperms. Sperms arrive karenge, that we have seen. Next is movement of sperm. We are talking about movement of sperm. बहुत vigorous movement होनी चाहिए. कितनी speed होनी चाहिए, 1.5 to 3 mm की per minute की speed होनी चाहिए, right? उसमें फेलोपियन ट्यूब उसको असिस्ट करती, द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस एंड द फेलोपियन ट्यूब असिस्ट इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द एग, वो असिस्टेंस उसको मिल जाती है वहां पे. थर्ड थिंग इज, वहां पे और क्या होना चाहिए, सेकेंडरी oocyte का अराइवल होना चाहिए. अगर सेकेंडरी oocyte आया ही नहीं है और आके अगर डीजेनरेट भी कर गया तो भी कोई फायदा नहीं है. तो अगर वहां तक स्पर्म पहुंच रहा है तो फर्स्ट थिंग वहां सेकेंडरी oocyte होना चाहिए और वायबल होना चाहिए, राइट, लिविंग होना चाहिए, 24 आवर्स के अंदर अंदर वहां पहुंचना चाहिए. ये सब कंडीशंस क्या है, सक्सेसफुल है, ये सारी कंडीशंस फेवरेबल है. इसके बाद क्या होगा, सी कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस होना चाहिए स्पर्म्स के अंदर सो दैट दे कैन फर्टिलाइज. नाउ व्हाट इज दिस प्रोसेस, सी अब तक हमने क्या बोला था, जब सीमेन रिलीज होता है तो वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, इट इज इन कोएगुलेटेड फॉर्म.
कोएगुलेटेड फॉर्म में वो रिलीज किया जाता है, जहां स्पर्म्स मोटिलिटी ज्यादा शो नहीं करते, राइट? क्यों? ताकि उनकी एनर्जी सेव रहे, ताकि वो अपना सारा माइटोकॉन्ड्रिया या फ्यूल जितना भी है वो वहीं पे खत्म ना कर दे. So what happens as soon as sperm reaches the female genital tract, जैसे ही स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं, इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. ओके, इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. तो क्वेश्चन क्या आया था कि हमारे पास जो पूरा सीमेन है वो क्लॉटेड फॉर्म में है. सीमेन इज इन क्लॉटेड फॉर्म. सीमेन अगर क्लॉटेड फॉर्म में है, स्पर्म्स दे आर नॉट मूविंग राइट नाउ. तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? सिक्रीशंस ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट. किसकी जेनाइटल ट्रैक्ट? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. Secretions of female genital tract, they will activate sperm. वो क्या करेंगे? स्पर्म्स को एक्टिवेट करेंगे. वो कैसे करते हैं? स्पर्म के ऊपर कुछ डेपोजिशंस हो जाती हैं. स्पर्म के ऊपर कुछ डेपोजिशंस होती हैं. किसके डेपोजिशंस होती है? सारे वही प्रोटीन है जो सीमेन के अंदर प्रेजेंट है. तो ये कोटिंग को रिमूव करवाते हैं कौन? सिक्रीशंस ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इन सिक्रीशंस को, ये जितनी भी कोटिंग इसके ऊपर हुई है, डिपॉजिट हुई है स्पर्म के ऊपर, ये सारी रिमूव करवा देंगे. अब स्पर्म के आगे सबसे हेड पे हमने एक चीज देखी थी, दैट इज एक्रोसोम. एक्रोसोम क्या है? गोल्जी एपरेटस की, गोल्जी बॉडी की एक मॉडिफिकेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसको हेल्प करेंगे एग के अंदर एंटर करने के लिए, राइट? तो ये जो रिसेप्टर साइट है, जो ये रिसेप्टर साइट है एक्रोसोम के ऊपर, इसको एक्सपोज करवा दिया जाता है. मतलब कि यहाँ पे जितनी भी कोटिंग होगी इसको भी रिमूव करवा दिया जाएगा. सो दिस लीड्स टू स्पर्म एक्टिवेशन. इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म एक्टिवेशन. ये जो स्पर्म एक्टिवेशन है, इसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 5 to 6 hours. 5 से 6 घंटे के अंदर ये स्पर्म जो है, जो सीमेन के थ्रू आया है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के सिक्रीशन, इसके ऊपर जितनी भी कोटिंग हुई होगी प्रोटीन्स की ड्यू टू सेमिनल प्लाज्मा, ये सारी रिमूव करेगा, एक्रोसोम को एक्सपोज करेगा बाहर की तरफ, और इस पूरे में टाइम लगता है 5 to 6 hours. और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन. ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब जो सीमेन में सिक्रीशंस और भी थी. कौन कौन सी सिक्रीशंस थी? देयर वर सिक्रीशंस फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, देयर वर सिक्रीशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, देयर वर सिक्रीशन फ्रॉम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. इसके अलावा अब तक इसने फ्रक्टोज को यूज करना शुरू नहीं किया था. क्यों? क्योंकि तो कोएगुलेटेड फॉर्म में था, एनर्जी तो यूज नहीं कर रहा था. अगर करता होता तो सारा फ्रक्टोज ये पहले ही कंज्यूम कर लेता, राइट? तो फ्रक्टोज को यूज नहीं किया था. और भी न्यूट्रिएंट्स थे, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड न्यूट्रिएंट्स था, उनको यूज नहीं किया था, राइट? तो इन सबको यूज करना शुरू कर देगा एक्टिवेशन के अंदर. और क्या करेगा? सीमेन के अंदर और क्या था? अल्कलाइन कंपाउंड्स है, राइट? अल्कलाइन कंपाउंड्स क्या करेंगे? दे विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट. एसिडिक एनवायरनमेंट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है स्पर्म्स पे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. कौन करेगा? अल्कलाइन सिक्रीशंस. कौन सिक्रीट कर रहा था अल्कलाइन सिक्रीशंस? दे वर फ्रॉम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, ये सारी सिक्रीशंस क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिडिक एनवायरनमेंट को. ओके, नाउ ये सारा तो हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. नाउ लेट्स से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से स्पर्म रीचेस टू द सेकेंडरी oocyte. यहाँ पे ओवम के पास स्पर्म पहुंच गया. सो क्या होगा इसके बाद? एक बार स्पर्म यहाँ पे पहुंच गया तो what happens next is, see, if we take again the diagram, what is happening? एक सेकेंडरी oocyte है, उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, उसके ऊपर क्या है? कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, राइट? लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर है. और इसको भी अगर हम जूम करके देखें, सो व्हाट विल हैपन फर्दर ऑन, कि ये सेकेंडरी oocyte
ये बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज पेरीवाइटल स्पेस, राइट। इसके ऊपर ये वाली लेयर जो है, दिस इज जोना पेलिसिडा, और जोना पेलिसिडा के ऊपर भी क्या है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स है। सो व्हाट विल हैपन एज सून एज स्पर्म रीचेस देयर, ओके, जैसे ही स्पर्म पहुंचेगा यहाँ पे, सो लेट्स से देयर इज अ स्पर्म व्हिच इज रीचिंग हियर, ओके, यहाँ पे एक स्पर्म है जो पहुंच रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, एंड लेट्स से दीज आर एक्रोसोम्स, ये एक्रोसोम्स है। तो क्या होगा धीरे धीरे, व्हाट विल हैपन, जैसे ही सेकेंडरी oocyte के पास स्पर्म पहुंचेगा, इट विल इनिशिएट द एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या इनिशिएट करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब तक हमने क्या देखा, कैपेसिटेशन हो चुकी है, कैपेसिटेशन हो चुकी है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्रोसोमल रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन है, मतलब एक्रोसोम कुछ करने वाला है यहाँ पे, ओके। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि एक्रोसोम यहाँ पे अपनी सिक्रीशंस रिलीज करने वाला है, राइट। बीच में एक इंटरफेस यहाँ पे ऐसा आता है, सी व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही ये सारा पेनिट्रेट करके पूरा कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके, जैसे ही स्पर्म पहुंचता है एग के पास, कौन सी लेयर के पास, जोना पेलिसिडा के पास, तो क्या होगा, एक रिएक्शन होगी यहाँ पे, ओके, रिएक्शन होगी मतलब इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में। इंटरेक्शन क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर यही कंडीशन, यही रिएक्शन हम लैब में कर रहे होते, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेट्री प्लेट में क्या लूं, मैं ह्यूमन एग लूं और किसी और स्पीशीज के डॉग या कैट के स्पर्म्स लूं, विल दे इंटरेक्ट, नो दे वोंट इंटरेक्ट एट ऑल, बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। सेम चीज तुमने प्लांट्स के केस में की थी कि कोई भी पोलन जर्मिनेट नहीं करता है, वही पोलन जर्मिनेट करता है जो उससे कंपैटिबल है, पिस्टल से कंपैटिबल है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सेम वे इस स्पर्म और इस एग के बीच में भी इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि भाई सही स्पर्म जो है वो आके बाइंड कर भी रहा है या नहीं, राइट। अगर ये इंटरेक्शन ना हो तो क्या होगा, देयर विल बी ह्यूज कंफ्यूजन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, आगे कुछ नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इंटरेक्शन होना जरूरी है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन हैपेंस इज, कुछ प्रोटीन्स दे आर रिलीज्ड हियर एंड देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ sperm. There are certain proteins which are on the surface of secondary oocyte and there are certain proteins which are on the surface of sperm. ये सारे इंटरेक्शन करते हैं आपस में, ओके, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। इंटरेक्ट कैसे करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, डायलॉग करेंगे, मींस दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ओके। लॉक एंड की हाइपोथेसिस से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से बाइंड करेंगे, अगर बाइंडिंग हो गई तो आगे की रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो लेट्स से बाइंडिंग हो गई, सो व्हाट विल हैपन, दिस एक्रोसोम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द टिप, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग। ये एक्रोसोम क्या होगा, टूटना शुरू कर जाएगा। तो लेट्स से ये टूटना ऐसे शुरू कर गया, ओके, एक्रोसोम टूटना शुरू कर गया। तो एक्रोसोम जब टूटना शुरू कर गया, एक्रोसोम के अंदर थे हमारे बहुत सारे एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स कहाँ गए, बाहर आ गए जोना पेलिसिडा की लेयर पे, राइट। ये सारे एंजाइम्स बाहर आ गए जोना पेलिसिडा की लेयर पे। हमने क्या किया था कि एक्रोसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एक्रोसोम, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मालाइसिन और स्पर्म लाइसिन्स। नाउ व्हाट विल दीज एंजाइम्स डू, दे विल डू लाइसिस, राइट। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। एक एंजाइम क्या था, हाइलोनिडेज, एक एंजाइम क्या था, हाइलोनिडेज, व्हिच ब्रेक्स अप द हाइलोनिक एसिड, हाइलोनिक एसिड। हाँ। तो जो सेल्स के बीच में जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस होगा, जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, वहां पे हाइलोनिक एसिड प्रेजेंट होगा, ओके। तो इस हाइलोनिक एसिड को ब्रेक कौन करेगा, हाइलोनिडेज ब्रेक करेगा, राइट। उसके अलावा कोरोना को पेनिट्रेट करने के लिए भी होगा। नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड इज, ये जोना पेलिसिडा को ब्रेक करने के लिए भी होगा, राइट। सो व्हाट विल हैपन, कोरोना रेडिएटा को भी क्रॉस कर गया, उसके बीच के एंजाइम्स भी, जितने भी हाइलोनिक एसिड का कॉम्पोजिशन था वो भी तोड़ दिया,
फिर जोना पेलिसिडा को भी तोड़ दिया, लेट्स से जोना पेलिसिडा को भी यहाँ से इसने तोड़ दिया. What will happen now? It will move inside, अंदर की तरफ मूव करेगा, right? So what will happen if I draw in the next diagram? कि what is happening next is, let's say I'll draw here कि एक बार sperm यहाँ तक पहुंच गया, what will it will do? It will penetrate inside. यहाँ पे penetrate करना शुरू कर देगा. Okay. So let's say it has reached to the secondary oocyte. कहाँ पहुंच गया? Secondary oocyte के यहाँ पहुंच गया. It has crossed the perivitellin space also. It has crossed the complete perivitellin space, zona pellucida, everything, and reached to secondary oocyte. Now next, what will happen? If we see in the next diagram, what will happen? It will start its fusion with the secondary oocyte. Secondary oocyte के साथ अपना fusion start कर देगा. So nucleus, it will start fusing with the secondary oocyte, as we have seen in the video also. कि यहाँ पे nucleus है, acrosome पूरा टूट चुका है, और it has broken the secondary oocyte wall also. ओके, एक्रोसोमल रिएक्शंस ने, एक्रोसोम एंजाइम्स ने सब कुछ तोड़ दिया, धीरे 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 आते हैं सब कुछ तोड़ दिया. और नेक्स्ट व्हाट इट विल डू, इट हैज ब्रोकन दिस सेकेंडरी oocyte wall also. Next, what it will do, it will release the nucleus. So in the next diagram, what we see that it releases its nucleus. Okay, so now what it will do is it will release the nucleus. So nucleus is released here in the secondary oocyte. Now what will happen? See, ये तो एक sperm था जो पहुंच गया. एक sperm का एक एक के साथ ही फ्यूजन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए multiple sperms fuse कर गए. There should be only one sperm reaching to one secondary oocyte. No more sperm should come. So this condition is called as monospermy. जब एक sperm जो है एक ही egg से fuse करता है, एक egg से fuse करता है, then the condition is called as monospermy. Polyspermy में क्या होगा? Multiple sperms fuse कर गए, जो नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि multiple nucleus हो जाएंगे, which is not favorable. उसमें ploidy जो है बहुत बढ़ जाएगी and it won't survive also. Okay, so what we have to do is we have to prevent polyspermy. हमें मोनोस्पर्मी प्रमोट करनी है, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करनी है, रोकनी है. ओके, तो क्या होना चाहिए? सेकेंडरी oocyte को कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक बार अगर कोई स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया तो उसे बाकी सारे स्पर्म जितने भी हैं उनको ब्लॉक कर देना चाहिए. ब्लॉक इन द सेंस वो फेसबुक और व्हाट्सएप वाला ब्लॉक नहीं है. ब्लॉक इन द सेंस कि उसको इतनी हार्ड वॉल बना लेनी चाहिए अपने चारों तरफ कि वहां पे कोई और स्पर्म ना पहुंच पाए. और ये कब होना चाहिए? जब पहला स्पर्म पहुंच गया. ऐसा तो नहीं है कि पहले स्पर्म से पहुंचने से पहले ही वो हार्ड वॉल बना ले, नॉट पॉसिबल, या ऐसा होना भी नहीं चाहिए. कब होना चाहिए? जब पहला न्यूक्लियस पहुंच गया अंदर. तो क्या होता है? सेकेंड नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि मल्टीपल स्पर्म जो है वो यहाँ तक oocyte के पास ना पहुंचे, इसके लिए क्या है? सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के एकदम नीचे, जस्ट बिलो दी मेम्ब्रेन, देयर आर सर्टेन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट. यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना. किसी भी सेल के या किसी भी चीज के बाहर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, राइट? तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. तो जैसे ही पहला स्पर्म, द फर्स्ट स्पर्म विच रीचेस एंड रिलीज इट्स न्यूक्लियस इनसाइड, जब भी कोई पहला स्पर्म अपना न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज कर देगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर छोड़ देगा, तो ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? अपने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को वॉल के पास लेके जाता है. कहाँ? सेल मेम्ब्रेन के पास लेके जाता है. और जितना भी इसके अंदर एंजाइम्स है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर एंजाइम्स है, तो क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल एंजाइम्स. ये बाहर की तरफ आया और पूरा का पूरा इसने क्या किया? रिलीज कर दिया कॉर्टिकल एंजाइम्स को. रिलीज करने के बाद क्या हुआ? ये चारों तरफ होगा, हर जगह होगा,
और रिलीज करने के बाद क्या होगा, जो ऊपर की जोना पेल्यूसिडा की लेयर थी, जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर थी, दैट विल बिकम कंप्लीटली हार्ड। क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाती है, बिल्कुल हार्ड। हार्ड होने के बाद क्या होगा, कोई और स्पर्म यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। जो स्पर्म ऑलरेडी जोना पेल्यूसिडा के बीच में थे, ये मैम सारे यहीं स्टक रह जाएंगे। हाँ, एक मिनट। और जो बाहर स्पर्म थे वो अंदर आ नहीं पाएंगे। ओके, सो दिस कंप्लीटली हार्डन्स द जोना पेल्यूसिडा लेयर। और क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी। हाँ बोलो। मैम तो ये मतलब बेसिकली तो जोना पेलिसिडा के ऊपर एक और लेयर बन रही है, तभी वो हार्ड हो रहा है ना। हाँ, जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है वो ही हार्ड हो जाती है और ज्यादा डिपोजिशन से। नहीं मैम, जो रिलीज करेंगे कॉर्टिकल सेल, जो भी मटेरियल ये रिलीज करेंगे कॉर्टिकल तो ग्रैन्यूल्स जो हैं वो किसी कंपाउंड को या किसी प्रोटीन को वो किसी ऐसे मटेरियल को रिलीज नहीं कर रहे हैं जो हार्ड कर रहा है, वो ऐसे एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं जो ऑलरेडी जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है, उसी को हार्ड करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ फ्रक्टोज रिलीज करें या हाइलोनिक एसिड रिलीज करें ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो एंजाइम्स ऐसे रिलीज कर रहे हैं कि ये जो प्रोटीन्स है ये और हार्ड हो जाए। अंशुमति, यस मैम, हुआ कुछ डाउट क्लियर? यस मैम, they are not releasing any reactant और या कोई भी compound, they are releasing enzymes यस मैम, which are already hardening the zona pellucida layer. Okay, ओके मैम, yeah. Now this complete prevents the polyspermy. इसके बाद क्या होगा, the sperm it will enter, जिस point पे, at the point of contact with the sperm, secondary oocyte it will form a cone. जिस पॉइंट पे न्यूक्लियस एंटर किया, जहां पे एंटर किया वहां पे क्या करेगा, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन, जहां से स्पर्म एंटर किया है। नाउ हियर इन दिस डायग्राम हमने एक ही चीज के अलग अलग फेजेस इसमें दिखाए हैं, राइट? तो अगर मैं एक्चुअल में स्टार्टिंग से देके चलूँ तो ये वाला जो स्पर्म है, ये साइट पे फर्टिलाइजेशन कोन बनना चाहिए, राइट? ऐसा तो नहीं है कि पहले इस साइड था फिर इस साइड था फिर इस साइड था, वो हमने एक डायग्राम में दिखाने के लिए किया है, पर एक्चुअल में जो साइड पे है वहीं पेनिट्रेट करता है और उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ओके, जैसे ही ये स्पर्म एंटर करता है उस साइट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। और यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस के साथ और क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे हम बोल रहे थे सेंट्रियोल होते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है जिससे प्रोटीन्स बाहर निकलते हैं, एक्सियल प्रोटीन्स, एक्सियल फिलामेंट बाहर निकलते हैं। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विल आल्सो एंटर अलोंग विद दिस। कौन एंटर करेगा साथ में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जैसे ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर करेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विल डिवाइड इनटू टू, इट विल डिवाइड इनटू टू, दो सेंट्रियोल में डिवाइड करेगा और क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन चालू कर देगा, क्योंकि सेंट्रियोल का वी हैव सीन इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, राइट? अब ऐसा क्यों कि ये डिवीजन क्यों हुई, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिवाइड किया दो में, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सेकेंडरी oocyte के पास खुद का कोई सेंट्रियोल नहीं होता। सेकेंडरी oocyte डज नॉट possess any centriole of its own, so sperm साथ में proximal centriole लेके आता है which divide into two so that it can move to opposite poles. Okay, now next thing is as soon as sperm reaches, what will happen, this will begin or this will initiate the meiosis 2. जो सेकेंडरी oocyte में अब तक meiosis 2 नहीं हुई थी उसको कंप्लीट करेगा, meiosis 2 कंप्लीट होगी, राइट? meiosis 2 कंप्लीट होगी तो क्या होगा, एक हेप्लॉइड मैच्योर ओवम बनेगा और साथ में क्या होगा, सेकंड पोलर बॉडी निकलेगी। नाउ दिस सेकंड पोलर बॉडी डीजेनरेट्स, इसका कोई यूज नहीं है। अब आते हैं हेप्लॉइड मैच्योर ओवम के साथ, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे न्यूक्लियस वहां रिलीज हुआ
तो मेल प्रोन्यूक्लियाई बना एक, तो मेल प्रोन्यूक्लियस, और यहाँ पे हेप्लॉइड जो था, जो हेप्लॉइड मैच्योर ओवम था, इससे एक फीमेल न्यूक्लियस बनेगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, वी कॉल्ड एज फीमेल प्रोन्यूक्लियस, राइट। तो क्या हुआ, हेप्लॉइड मैच्योर ओवम से फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना, मेल प्रोन्यूक्लियस स्पर्म से आया था, इन दोनों की मिक्सिंग होगी, इन दोनों की मिक्सिंग होगी। इफ यू रिमेम्बर द वीडियो, व्हाट विल हैपन, दोनों के डीएनए आपस में मिक्स हो जाएंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, इस प्रोसेस को बोलेंगे कैरियोगैमी, और दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। जनरली क्या बोलते हैं कि पहले जब दोनों सेल जो है फ्यूज किए, दैट इज प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट थिंग इज कि जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करने लगे, दैट इज कैरियोगैमी, और जब डीएनए एकदम मिक्स हो गया दोनों न्यूक्लियस में, उसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ओके, सो इट हैपेंस इनटू 3 स्टेप्स, पहले दोनों के सेल फ्यूज किए, फिर न्यूक्लियस फ्यूज किए, और फिर बाद में डीएनए की मिक्सिंग हो गई। अब क्या बना, जाइगोट बन गया। हमारा जो मेल प्रो न्यूक्लियस था, जो फीमेल प्रो न्यूक्लियस था, दोनों ही हेप्लॉइड थे, जाइगोट कैसा बना, 2n बना, right? So zygote is 2n. Next, what will happen is this complete zygote, it will stimulate the respiration process. See, क्या बोल रहे थे, कोरोना रेडिएटा जो है वो सेकेंडरी oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन एक बार अगर यहाँ पे जाइगोट बन गया, व्हाट विल हैपन, ये अपना रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। ये जाइगोट क्या करेगा, अपना रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। जितना इसने न्यूट्रिएंट मीडियम कैरी किया था, जितना भी नरिशमेंट इसने कैरी किया था, वो सबको एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। ओके, सो एज सून एज जाइगोट इज फॉर्म्ड, व्हाट विल बी देयर, इट विल एक्टिवेट, व्हाट इट विल एक्टिवेट, इट विल एक्टिवेट रेस्पिरेशन, और फिर आगे डेवलपमेंट के लिए, जाइगोट की डेवलपमेंट होनी है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे पूरा फीटस बनना है, तो क्या होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस होनी चाहिए। इट विल एक्टिवेट इवन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, so this is complete fertilization process. Now what is happening in the fertilization process is, in the fertilization process पहले जो है वो स्पर्म पहुंचता है, कहाँ तक पहुंचता है, एग तक, सेकेंडरी oocyte तक पहुंचता है। रास्ते में उसको एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से कुछ मर जाते हैं, कुछ ट्रैप हो जाते हैं सर्विक्स में, कुछ जो है वो ल्यूकोसाइट्स उनको खा जाते हैं, कुछ सिलिएटेड एपिथेलियम में फंस जाते हैं, एंड फाइनली द स्पर्म रीचेस टू सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के पास जैसे ही वो पहुंचता है, उससे पहले ही उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सिक्रीशन से कैपेसिटेशन हो चुकी होती है, मींस स्पर्म एक्टिवेट हो चुके होते हैं फॉर देयर विगरस मूवमेंट। जैसे ही वो सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है, इट डिसइंटीग्रेट्स द एक्रोसोम, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन, इसको एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। और एक्रोसोम के अंदर जितने भी स्पर्म लाइजेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोनडेज, तो वो क्या करते हैं, एंजाइम जैसे रिलीज हो जाएंगे उनको तोड़ना शुरू कर देगा। किसको तोड़ना शुरू कर देगा, यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स थे उनके बीच में स्पेस बनाना शुरू करेगा, तोड़ना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे जोना पेलिसिडा की लेयर को तोड़ेगा, और धीरे धीरे पेरीवाइटलिन स्पेस से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन के पास, वहां पे भी ब्रेक करके न्यूक्लियस को अंदर रिलीज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक बार न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिलीज हो गया, तो टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कोई और स्पर्म आके फ्यूज ना करे, सेकेंडरी oocyte के अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये बाहर रिलीज करते हैं कॉर्टिकल एंजाइम, और ये एंजाइम हार्ड कर देते हैं जोना पेलिसिडा की लेयर को। इस हार्डनिंग की वजह से जो स्पर्म ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके थे जोना पेलिसिडा तक, वो वहीं फंस जाएंगे, और कोई स्पर्म आके जोना पेलिसिडा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो अंदर सेकेंडरी oocyte के अंदर पहुंचेगा, इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 सेंट्रियोल। ये 2 सेंट्रियोल क्यों जरूरी है, माइटोटिक डिवीजन के लिए, माइटोसिस के लिए, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। ओके, तो जैसे ही स्पर्म वहां तक पहुंचता है,
जो मियोसिस 2 में सेकेंडरी oocyte था, अटका हुआ था, वो मियोसिस 2 को पूरी करता है. Next what happens is, next what it does is, it forms haploid mature ovum. Haploid mature ovum बनाता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है. सेकेंड पोलर बॉडी डीजनरेट कर जाती है. हेप्लॉइड मेच्योर ओवम के पास फीमेल प्रोन्यूक्लियस होगा, स्पर्म जो है मेल प्रोन्यूक्लियस लेके आया होगा. ये दोनों फ्यूज करेंगे टू फॉर्म, टू अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज कैरियोगैमी, और डीएनए की पूरी मिक्सिंग होगी, सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस आल्सो. और क्या बनाएंगे? जाइगोट. Now both of these gametes were haploid. Zygote is 2n. जायगॉट क्या करेगा? आगे अपनी डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए अपने हाथ में अपनी बागडोर संभाल लेगा. इट विल स्टार्ट इट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि ये इसको डिपेंड ना करना पड़े किसी और पे. ओके, तो एक्टिवेट करेगा अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन को, मेटाबॉलिज्म को जो अब तक एकदम डोरमेंट स्टेज में पड़े थे, और प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, so this is all about fertilization, and this is how fertilization occurs.